Hello students, welcome to economic class. So today we are going to start video number 19, and in this video we have come to an end of the chapter theory of demand. So children, in the previous video we have discussed most of the topic. Few important points are remaining there, so let's we discuss these points. Today we will discuss cross price effect, right? We will also discuss relation between income and demand, and impact of taste and preferences, and except it we will discuss about favorable change in taste and preferences, unfavorable change in taste and preferences, and climatic environment, taste and fashions also. So let us start first of all from the cross price effect. So children, in this cross price effect we are going to discuss two matters, which are substitute goods and complementary goods. In the previous video, whenever we were discussing about the functions of demand, or simply we can say determinant of demand, so in that point, in that topic, I also explained substitute good are those goods which can be used in place of each other, or we can say which can substitute the use of other. For example, tea and coffee, right? Pepsi and Coke, right? These are the substitute goods which can be used in place of each other. Other one was complementary goods. Complementary goods are those goods which are demanded together. For example, paint and refill, car and petrol. Without refill, paint is useless. Without petrol, car cannot be operated. Because of that, we are saying that complementary goods are demanded together, right? And substitute goods are those goods which can be substituted for each other, right? So let us discuss one by one. But before proceeding further, children, let me elaborate the point more. Actually, whatever we are going to discuss in this video. So children, we are going to discuss two points. First, substitute goods. So before explaining substitute goods, we have to take a given commodity and substitute goods. For example, if we are discussing about the tea and coffee, so we have to take one commodity as a given commodity. For example, I am taking tea as a given commodity. So if I am taking tea as a given commodity, so coffee will be a substitute good for me. So actually in this video we are going to discuss that what will happen if the price of substitute good is increasing or decreasing. Okay, for example, I am taking tea as a given commodity. So what will be the effect of in the demand of tea if substitute good, that is coffee, if the price of coffee increases or decreases. So let us discuss this point first. So here children, given commodity is tea, right? And substitute good is coffee, right? What will happen if price of coffee, चिल्ड्रन मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाना, सी का मतलब कॉफ़ी, टी का मतलब टी, ठीक है? तो कॉफ़ी के प्राइस दो तरीके से इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं, ठीक है? हम इसके इफेक्ट को देखने वाले हैं. तो हमने अपने एग्जाम्पल के लिए हमने ये टी हमारी गिवन कमोडिटी है, और हम ये देखने वाले हैं कि टी के डिमांड में क्या इफेक्ट होगा अगर सब्सटीट्यूट गुड यानी कि कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं. तो इसको हम एक एग्जाम्पल से एक कर्व के थ्रू समझाएंगे चिल्ड्रन. ये देखिए, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और चिल्ड्रन इसमें प्राइस का कोई रोल नहीं होगा. तो हम प्राइस को इसमें कांस्टेंट रखेंगे. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइस, ठीक है? और ये हो गई चिल्ड्रन हमारी इनिशियल डिमांड कर्व, इनिशियल डिमांड कर्व फॉर टी. ये टी की डिमांड कर्व है, और अभी मैं ये मान लेता हूँ कि प्राइस पी है, और उस प्राइस पी पर टी की डिमांड जो है क्यू है, और ये मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए, ठीक है? ये क्यू कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, 10, 20, 30, 40. अब देखिए, अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो कॉफ़ी का प्राइस जब इंक्रीज हो जाएगा तो कॉफ़ी महंगी हो जाएगी. तो जो लोग कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे थे
अब वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी वो कॉफ़ी नहीं पिएंगे, अब वो टी ड्रिंक करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो टी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और बिकॉज ऑफ दैट डिमांड कर्व ऑफ टी विल शिफ्ट राइट वर्ड। हमने आपको पिछले वीडियो में शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व बताया था ना, तो जो डिमांड कर्व है चिल्ड्रन वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जो कॉफ़ी टी की जो डिमांड है चिल्ड्रन वो इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए हो जाएगी Q1। इसके अपोजिट हम देख लेते हैं कि अगर ये हमारी इनिशियल डिमांड कर्व फॉर टी है और कॉफ़ी के प्राइस कम हो जाते हैं इन कंपेरिजन टी, अगर हम टी से कंपेयर करें तो प्राइस कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाता है, यानी कॉफ़ी सस्ती मिलने लगती है। तो क्या होगा कि जो लोग टी को कंज्यूम कर रहे थे अब वो टी को कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि टी महंगी हो गई और कॉफ़ी सस्ती हो गई है, तो वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी की तरफ। तो जो टी की जो डिमांड है चिल्ड्रन वो कम हो जाएगी, और जो डिमांड कर्व ऑफ टी है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व फॉर टी, और ये होगी इसकी क्वांटिटी, ये हम कर लेते हैं Q2। तो ये हो गया हमारा B और ये हो गया C। तो आप देखोगे कि जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉफ़ी, एंड ये हो गया डिक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफ़ी व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड दैट इज कॉफ़ी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अगर हमारी गिवन कमोडिटी टी है तो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड होगा कॉफ़ी। तो अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और बिकॉज ऑफ दैट डिमांड कर्व टी को की जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और अगर कॉफ़ी के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसके कंपेयर में टी महंगी हो जाएगी, तो टी को पीने वाले कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब जो लोग टी कंज्यूम कर रहे थे वो कॉफ़ी पिएंगे, तो टी की जो डिमांड है चिल्ड्रन वो कम हो जाएगी। तो आई होप चिल्ड्रन कि आपको क्रॉस प्राइस इफेक्ट में सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। चिल्ड्रन एज यूजुअल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल पेन एंड रिफिल, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, तो अगर हमारी चिल्ड्रन अगर हमारी गिवन कमोडिटी कार है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो जाएगा हमारा पेट्रोल। अगर हमारी गिवन कमोडिटी पेन है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो जाएगी रिफिल। तो हम कार एंड पेट्रोल की बात करते हैं चिल्ड्रन। तो हमारी गिवन कमोडिटी रहेगी चिल्ड्रन, गिवन कमोडिटी है हमारी कार, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा चिल्ड्रन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो जाएगा हमारा पेट्रोल। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम क्या करेंगे कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइस को हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। पहले ज़्यादा करेंगे फिर कम करेंगे। ये अपवर्ड एरो है, ये इंक्रीज है, और ये डाउनवर्ड एरो है, ये डिक्रीज होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक कर्व बना लेते हैं। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, ये हो गई हमारी प्राइस लाइन। ठीक है, और ये हो गया हमारा इनिशियल डिमांड कर्व फॉर कार। तो यहाँ मैं DC लिख लेता हूँ। DC का मतलब है डिमांड फॉर कार। ठीक है, ये इनिशियल डिमांड कर्व फॉर कार होगी चिल्ड्रन। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अब देखिए कि हमारी गिवन कमोडिटी कार होगी तो सब्स्टिट्यूट गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल के प्राइस चिल्ड्रन हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या होगा कि जो कार खरीदने वाले लोग थे, जो पेट्रोल वाली कार है उसकी डिमांड जो है चिल्ड्रन वो कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। तो हम पेट्रोल से चलने वाली कार को, अच्छा यहाँ पर जो हमने कार लिया है चिल्ड्रन वो पेट्रोल वाली कार है। ठीक है, अगर आपकी डीजल वाली कार है तो फिर कार और डीजल लोगे। तो यहाँ पर हम पेट्रोल वाली कार का इसलिए मैंने पेट्रोल लिखा, आप चाहो तो डीजल भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमारी अगर गिवन कमोडिटी कार है तो सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया हमारा पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल के प्राइस चिल्ड्रन ज़्यादा हो जाएंगे तो क्योंकि हम कार को पेट्रोल से चला रहे हैं तो हम डिमांड, कार की जो डिमांड है चिल्ड्रन वो, ये देखिए हमने यहाँ लिखा नहीं है, P हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, तो कार की डिमांड कम हो जाएगी तो जो कार का जो डिमांड कर्व वो कार है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है ना, ये हो गया DC, ये हो गया DC, और ये हो गया Q1। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B। ये देख सकते हैं आप कि कार की जो डिमांड है वो कम हो गई। अब अगर हम इसका अपोजिट करते हैं, अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो पेट्रोल सस्ता हो गया, क्योंकि पेट्रोल हम कार चलाते हैं।
कार को हम पेट्रोल में यूज़ करते हैं ना, तो पेट्रोल को हम ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो क्या होगा कि कार की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो डिमांड इनिशियल डिमांड कब था चिल्ड्रन, वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ। तो इसको हम लिखेंगे डिमांड फॉर कार। आई होप चिल्ड्रन ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। सो चिल्ड्रन हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद चिल्ड्रन हम बात करें रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ठीक है, इनकम चिल्ड्रन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो उसका डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। चिल्ड्रन जब हम इनकम के इफेक्ट को डिमांड पर स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो तरह की कमोडिटी है। जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि दो तरह के गुड है, एक नॉर्मल गुड है और एक इन्फीरियर गुड्स हैं। नॉर्मल गुड तो चिल्ड्रन नॉर्मल गुड होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं चिल्ड्रन जो नेचुरली लो क्वालिटी की कमोडिटी होती है, जिनकी डिमांड मोस्टली जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट होगा चिल्ड्रन। तो ये नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं चिल्ड्रन। तो ये होगी हमारी इनकम। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी चिल्ड्रन तो नॉर्मल गुड के केस में चिल्ड्रन क्या होगा, नॉर्मल गुड में चिल्ड्रन क्या होगा, क्वांटिटी जो है डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स में इसका चिल्ड्रन अपोजिट इफेक्ट होता है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल गुड में अगर इनकम इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, अगर इनकम डिक्रीज हो गई है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इन्फीरियर गुड में क्या होगा कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, और इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। तो इसको चिल्ड्रन हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल गुड का केस बताता हूँ। नॉर्मल गुड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मल गुड में हम ले लेते हैं हमारी इनकम पहले इंक्रीज हो गई है। इसमें चिल्ड्रन हमको पहले लेना पड़ेगा इनिशियल डिमांड का, ये होगी हमारी प्राइस लाइन। चिल्ड्रन यहाँ पर इन सभी क्रॉस प्राइस इफेक्ट में प्राइस का कोई रोल नहीं है। तो ये इनिशियल डिमांड कर्व हो गया चिल्ड्रन, यहाँ पर हम प्राइस हमने मान लिया ये ओपी है और ये क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू है। अब ये नॉर्मल गुड है, हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है चिल्ड्रन। तो जब इनकम इंक्रीज हो गई तो हम क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। तो ये एक तरीके से हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ये देख सकते हैं आप, ये डिमांड ज़्यादा हो गई, ये Q1 हम कर लेते हैं, ये हो गया ये A और ये B हो गया। अगर हमारी इनकम चिल्ड्रन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, तो जो हमारा डिमांड कर्व वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ये देखिए, ये हमने कर दिया C, इसको इंटरसेक्ट यहाँ करेगा, ये हमने कर दिया Q1। ये देखिए, ये इनिशियल डिमांड कर्व था, ये इनिशियल क्वांटिटी थी, हमारी इनकम इंक्रीज हुई, हम ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। इनकम डिक्रीज हुई, ये हम कम क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। ये है नॉर्मल गुड का केस। इसका अपोजिट चिल्ड्रन अगर मैं इसको इसी में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, इन्फीरियर गुड में मैं इसको इरेज कर देता हूं, बाकी डायग्राम में सही रहने देता हूं ऐसे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा कि इन्फीरियर गुड्स में इसका अपोजिट इफेक्ट होता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो गई चिल्ड्रन, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है इन्फीरियर गुड के केस में, तो अब हम इन्फीरियर गुड की डिमांड कम करेंगे और नॉर्मल गुड की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो क्या होगा कि हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है तो इन्फीरियर गुड की हम डिमांड कम करेंगे, तो जो डिमांड कब है इनिशियल डिमांड कब चिल्ड्रन वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ। और अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो गई है तो जो इनिशियल डिमांड कर्व है वो चिल्ड्रन राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर हम उस गुड की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो चिल्ड्रन इन्फीरियर गुड के केस में इनकम का इफेक्ट अपोजिट होता है। इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम होगी, और इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड की डिमांड चिल्ड्रन ज़्यादा होगी। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये समझ में आपको आ गए होंगे। इन सब में चिल्ड्रन आपने देखा कि प्राइस का कोई रोल नहीं है। इनकम तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बट अदर फैक्टर की वजह से हो रही है, जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट जिसमें हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड बताया। तो प्राइस का इसमें चिल्ड्रन कोई रोल
नहीं था। अब हम देखते हैं चिल्ड्रन इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये बहुत चिल्ड्रन सिंपल है कि अगर हमें किसी कमोडिटी का टेस्ट अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, या कोई ऐसी पर्टिकुलर कमोडिटी है कि उसके लिए हमारी प्रेफरेंस ज़्यादा है तो फिर हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जो डिमांड कर वो चिल्ड्रन वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर किसी कमोडिटी के अगेंस्ट में हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है तो उसकी डिमांड हम कम करेंगे, और फिर क्या होगा, डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि इनिशियल डिमांड कब था, ये x हो गया, ये y हो गया, ये o हो गया, ये प्राइस हो गया, ये हमारी इनिशियल डिमांड का चिल्ड्रन dd, ठीक है। अब अगर किसी कमोडिटी का, ये हमारा q हो गया, ये हो गया हमारा p। अब हमें किसी कमोडिटी का चिल्ड्रन टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो हम उसको प्रीफर करेंगे, उसकी डिमांड जो है चिल्ड्रन आप देखो ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। और अगर हमें उसका टेस्ट अगेंस्ट में हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो उसकी डिमांड हम कम करेंगे और शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। ये D2 आप देख सकते हैं, ये क्वांटिटी जो है पहले से थोड़ी सी कम है, ये इंक्रीज इन डिमांड, ये डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट चिल्ड्रन इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इंडिविजुअल आप समझते हैं कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, अगर वो किसी कमोडिटी को लाइक करता है तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिसलाइक करता है तो डिक्रीज होगी। ट्रेंड्स एंड फैशंस, ठीक है ना, आपने देखा होगा फैशनेबल चीज़ें होती हैं, ट्रेंड में रहती है चीज़ें, तो जो चीज़ें ट्रेंड में हैं उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। प्राइस तो फिक्स रहता है, चाहे वो प्राइस कुछ भी हो, उसी प्राइस पर उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और जो चीज़ें ऑब्सलीट हो गई हैं, फैशन में ही नहीं है या ओल्ड फैशन वाली चीज़ें हैं, आप उनका प्राइस कम करो या ज़्यादा, उसकी डिमांड पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि सर्दियाँ जब आ जाती हैं तो हम विंटर में यूज होने वाली चीज़ें परचेज करना शुरू कर देते, चाहे उनका प्राइस इंक्रीज ही क्यों ना हो, हम उसको ज़रूर परचेज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सर्दियों में हम एसी की डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उस इनकम हमें सर्दियों में एसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर गर्मी आ गई तो कूलर है, एसी है, फ़ैन है, इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर फेवरेबल और वेदर है तो उसमें पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, चाहे प्राइस उसका कितना भी रहे। उसके चिल्ड्रन बाद आए फेवरेबल चेंजेस इन ट्रेंड एंड प्रेफरेंसेस। कोई चीज़ आप पहले से आप कंज्यूम कर रहे थे, अगर उसके टेस्ट में या प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आया, यानी वो चेंज आया जो आपको अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर अनफेवरेबल चेंज है चिल्ड्रन तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड हम कम करेंगे। तो चिल्ड्रन विद दिस पॉइंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक। नाउ वी हैव फिनिश टॉपिक नंबर तो मैं नहीं कहूँगा, थ्योरी ऑफ डिमांड जो चैप्टर था 11th क्लास इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमने उसको फिनिश कर दिया है। और आई होप चिल्ड्रन कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।